ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ المؤمنون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے، 6 رکوعات ہیں۔ اس صورت کی پہلی 10 آیات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو آپ کے چہرے کے آس پاس شہد کی مکھی کی گنگناہٹ جیسی آواز آپ کے پاس آتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کر کے اور دونوں ہاتھ اپنے اٹھائے اور اللہ کے سامنے جاری کر کے دعا کی، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارضنا۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں زیادہ کر، تھوڑے نہ رہنے دے، یعنی ہماری تعداد میں اضافہ کر، ہمیں عزت عطا فرما، ذلیل نہ رہنے دے، ہمیں عطا کر، ہمیں محروم نہ کر۔ ہمیں یا اللہ دوسروں پر مقدم کر، دوسروں کو ہمارے اوپر مقدم نہ کر۔ یا اللہ ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا۔ اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیات پڑھی، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ اسی طرح امام نسائی نے کتاب التفسیر کے اندر یزید بن بابنوس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا اور کیا تھا؟ حضرت سیدہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق
یعنی آپ کی طبعی عادت ویسے تھی جو قرآن کے اندر موجود ہے، یعنی قرآن کے اندر جو باتیں موجود ہیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اور اس کے بعد یہ 10 آیتیں یعنی قد افلح المؤمنون سے لے کر 10 آیتیں تلاوت کر کے فرمایا بس یہی خلق اور عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ حدیث کافی مشہور ہے، کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ لیکن اس کے بعد 10 آیتیں تلاوت کر کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق اور عادت یہی تھا۔ تو گویا حضرت سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے پورے قرآن پاک میں سے خصوصاً ان 10 آیات کی تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ان کے مطابق بتایا۔ انہی آیات کی روشنی میں مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات اور یہ عادات پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ اس لیے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے مومن، یقیناً قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن۔ آگے صفات کا ذکر ہے کہ وہ مومن فلاح پا گئے، وہ مومن کامیاب ہو گئے جن کے اندر اگلی صفات موجود ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ صفات موجود نہیں ہیں یہ باتیں جو آئندہ بتائی جانے والی ہیں اگر یہ موجود نہیں ہیں، اگر یہ ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کا حصہ نہیں ہے اور ہم ان صفات سے محروم ہیں تو پھر ہمارے لیے کامیابی کے راستے مشکل ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے اخلاق کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ ہم اس کامیابی سے محروم نہ رہ جائیں۔ اگر ہم حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر کوشش کر کے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ مومنون کے شروع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، قد یقیناً افلح فلاح پا گئے، المؤمنون مومن۔ فلاح پانے کے لیے سب سے پہلی صفت ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر اگر یہ ساری صفات یا ان میں سے کوئی ایک کسی شخص کے اندر اگر یہ صفات موجود ہوں بھی، ایمان نہ ہو لیکن یہ صفات موجود ہوں،
تو اس کو ان صفات کو اپنانے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ صفات بھی اس وقت فائدہ دیں گی جب ایمان ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے افلح، فلاح کا لفظ استعمال فرمایا۔ تحقیق کامیاب ہو گئے مومن، فلاح پائی مومنوں نے۔ تو فلاح کا لفظ اس کا اصل روٹ ہے فا، لام اور ہا، جس کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ لغوی میننگ، ڈکشنری میننگ، فلاح کے 3 معنی آتے ہیں۔ نمبر 1 پھاڑنا، نمبر 2 کامیابی، اور نمبر 3 بقا، باقی رہنا۔ فلاح کے معنی میں جو چیرنا، پھاڑنا، کاٹنا، اسی سے لفظ فلاح بھی نکلتا ہے۔ یہ لفظ پھر فلاح کا لفظ کاشتکار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زمین کو پھاڑتا ہے، چیرتا ہے، اور اس کے اندر، زمین کے اندر مشقت کرتا ہے، کھیتی کاٹتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا فلاح کا معنی جو ہے وہ کامیابی ہے۔ تو اس کے معنی میں یہ بات آتی ہے، جیسا کہ قاموس میں آتا ہے، فلاح کا معنی ہے کہ ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو۔ یعنی کامیابی کیسی، یا کامیابی کا مفہوم اس میں کیا ہے کہ ہر مراد حاصل ہو، یعنی جو دل چاہے وہ مل جائے، اور ہر تکلیف دور ہو، یعنی جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ انسان سے ہٹ جائیں۔ اس قسم کی کامیابی کے لیے لفظ فلاح استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا ہم نے کیا بقا۔ اس کا معنی ہوتا ہے بقا، یعنی اس میں باقی رہنے کا معنی بھی ہے کہ کامیابی ایسی نہیں جو وقتی ہو۔ مثلا کوئی 1 گھنٹہ یا 1 دن، 1 لمحہ آپ کا ایسا گزرا کہ جو آپ چاہتے تھے وہ آپ نے کر لیا، اور جو آپ ناپسند کرتے تھے وہ آپ سے دور ہو گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ ساری مصیبتیں، پریشانیاں پھر لوٹ آئیں جن کو آپ اپنے آپ سے ہٹانا چاہتے تھے۔ اس فلاح کی طرف یہاں پر اشارہ ہے جو ہمیشہ کی ہے، جزوی یا وقتی کامیابی نہیں بلکہ ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی۔ اسلام کی نظر میں مفلح وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کریم کو راضی کرے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا مستحق ہو۔ اس کے ساتھ اگر دنیا بھی مل جائے تو اچھا، اگر دنیا نہ بھی ملے تو جو شخص
آخرت کی کامیابی پا گیا وہی دراصل مفلح ہے، وہی دراصل کامیاب ہے، کیونکہ اصل کامیابی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ اس ساری ڈیفینیشن کو، تعریف کو، تفصیل کو سامنے رکھا جائے تو دو تین چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک، اس کامیابی کے لیے کوشش ضروری ہے، اسٹرگل ضروری ہے۔ یعنی پہلا معنی تھا نا اس میں چیرنا، پھاڑنا، کاٹنا، یہ سارے کام مشقت والے ہیں، مشقت سے ہوتے ہیں۔ جیسے پیچھے، اس سے پیچھے جو ہے وہ جہاد کی بات تھی، اس میں بھی اسٹرگل ہے، کوشش ہے، جان لگانی ہے، مال لگانا ہے، وقت لگانا ہے۔ تو اسی طرح فلاح کے معنی میں اسی مشقت کی روح، اسپرٹ موجود ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں پیچھے سورۃ الحج میں بھی لعلکم تفلحون کی بات ہوئی، پیچھے آپ آیات میں دیکھ سکتے ہیں کہ کامیابی کے لیے کچھ کام کرنا پڑیں گے، فری میں کامیابی نہیں ملا کرتی۔ تو یہاں بھی کامیابی کے لیے محنت اور مشقت کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل مفلح اور کامیاب وہ ہے جس کی ہر مراد پوری ہو اور ہر تکلیف دور ہو۔ ایسا ہونا دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کوئی شخص بھی جو دنیا کے اعتبار سے کامیاب کہلایا جاتا ہے ہماری نظر میں، وہ حقیقی معنوں میں کامیاب نہیں ہے۔ تو ہم جب کامیابی کے لیے کوشش کریں تو صرف دنیا کو سامنے رکھ کر نہیں، آخرت کو سامنے رکھ کر، باقی رہنے والی یعنی بقا کے معنی میں یہ سامنے رہے۔ تو قد افلح، تو جب یہ ہم لفظ بولیں افلح تحقیق، قد افلح تحقیق کامیاب ہو گیا، تو کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ افلح، محنت ذہن میں آ رہی ہے، مشقت ذہن میں آ رہی ہے۔ وہ مشقت انسان نے جو کی وہ کام آئی، وہ فائدہ مند رہی، قبول ہو گئی، ایسی خوشی نصیب ہوئی کہ جو چاہا مل گیا، اور جو پسند نہیں تھا وہ سب کا سب دور ہو گیا۔ اور پھر ایسی کامیابی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، قد افلح تحقیق بامراد ہو گیا، اپنی منزل کو پہنچ گیا، ہمیشہ کی خوشیوں کو پا گیا۔ کون؟ المؤمنون، جس میں ایمان کی صفت تھی، ایمان والے۔ اور ایمان یہاں صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، اسی لیے مومنون کی جو 7 صفات بیان کی گئی ہیں وہ کچھ تمناؤں اور آرزوؤں پر مشتمل نہیں، وہ محض چند باتوں پر مشتمل نہیں، بلکہ اس میں محنت ہے،
مشقت ہے، کوشش ہے، اسٹرگل ہے، تو پہلی صفت کیا ہوئی؟ الذین هم عن صلاتهم الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ جو خشوع کا لفظ ہے، خا، شین اور عین، یہ اس کے اصل حروف ہیں، اصل مادہ ہے جس کا معنی ہے سکون۔ ایسی نماز جس میں سکون ہو، دل کے اندر بھی اور ظاہری حرکات میں بھی۔ یعنی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ ہی کی محبت ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، اور دل کے اندر یہ احساسات اتنے گہرے ہوں کہ انسان کے ظاہری رویے میں بھی ظاہر ہو رہے ہوں۔ اس کے اعضاء پر بھی اس کا اثر موجود ہو۔ پھر خشوع کا ایک اور معنی کسی کے آگے جھک جانا، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، یہ بھی معنی کیا گیا ہے۔ کسی کے سامنے جھکنا اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا، یہ بھی خشوع کا معنی کیا گیا ہے۔ تو گویا خشوع کا لفظ آتے ہی دل میں پہلا خیال کیا آنا چاہیے؟ سکون، ٹھہراؤ، ریلیکس، عاجزی، جھکاؤ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مفسر قرآن تھے، یہ فرماتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں دیکھنے سے بچنا، گوشِ چشم سے، یعنی آنکھ کے کناروں سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خشوع ہے۔ یعنی نماز میں کھڑے ہیں تو دائیں بائیں نہیں دیکھنا اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا۔ تو جو اس سے بچ جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ خشوع کی حالت میں ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے بدن کے کسی حصے کے ساتھ نہ کھیلے، اپنے بدن کے کسی حصے کے ساتھ نہ کھیلنا، یہ خشوع ہے۔ یعنی نماز میں اپنے آپ کو بے وجہ کھجانا، داڑھی کھجانا، سر میں خارش کرنا، کپڑوں کی سیٹنگ کرنا، آگے پیچھے ہونا، کبھی ٹانگ اٹھانا، کبھی انگلیاں مروڑنا، کبھی کچھ کرنا، کبھی ایک ٹانگ پہ بوجھ ڈال کے کھڑے ہو جانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خشوع کے خلاف ہیں۔
हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला नमाज के वक़्त अपने बंदे की तरफ बराबर मुतवज्जे रहते हैं। अल्लाह की तवज्जो होती है इंसान पर जब तक इंसान दूसरी तरफ इल्तिफात न करे, दूसरी तरफ तवज्जो न करे। यानी अल्लाह ताला इंसान पर तवज्जो फरमाते हैं, लेकिन जो ही इंसान इधर उधर ज़हन दौड़ाता है तो फिर अल्लाह की तवज्जो इंसान से, रहमत ख़त्म हो जाती है। यानी जब बंदा अपने रब की तरफ, अपने पालने वाले की तरफ मुतवज्जे रहता है तो रब भी बंदे की तरफ मुतवज्जे रहता है। जब वो दूसरी तरफ इल्तिफात करता है, गोशे चश्म से यानी इधर उधर देखता है, तो अल्लाह ताला उससे रुख फेर लेते हैं। यानी आपका ध्यान नमाज में अगर अल्लाह ताला की तरफ रहा तो अल्लाह की तवज्जो भी आपकी तरफ होगी, लेकिन जो ही आपने इधर उधर मुंह किया तो फिर अल्लाह भी रुख अपना फेर लेगा, तवज्जो हटा लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि अपनी निगाह नमाज के अंदर उस जगह पर रखो जहाँ पर सजदा करते हो, और ये भी फरमाया कि नमाज में दाएं बाएं इल्तिफात मत करो। यानी नमाज का खुशू क्या है? सजदे की जगह पर इंसान की नज़र हो। अगर आप लोग इस अमल में कामयाब हो जाएं, यानी आपकी निगाह सजदे में हो जाए, सजदे में आप देखें, तो यकीन माने कि आपकी नमाज के अंदर खुशू आ जाएगा। जिस चीज़ का अल्लाह ताला मुतालबा कर रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आंखें बंद करने से ज़्यादा खुशू आता है, जो गलत फहमी है। ऐसा करना पसंदीदा नहीं है कि इंसान नज़रें बंद करके खड़ा हो जाए और खुशू हासिल करने की कोशिश करे। ऐसा ये अमल जो है ये पसंदीदा नहीं है। लगता इंसान को बहुत आसान है कि कोई चीज़ नज़र ना आएगी तो हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ हो जाएगा, लेकिन अभी आप इस वक्त सुनने के बाद जो आप नेक्स्ट नमाज पढ़ेंगे तो उसमें तजर्बा करके देखें कि जो लोग आंखें बंद करके नमाज पढ़ रहे थे, आज वो अपनी आंखें खोलें और सजदे की तरफ देख के नमाज पढ़ें, तो फिर देखेंगे कि आपका खुशू का लेवल किधर जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। क्योंकि हम नमाज़ें पढ़ते रहे जैसे बचपन से पढ़ते रहे, किसी ने नमाज़ों में टोका नहीं कि आंखें बंद न करो, ये न करो, वो न करो, तो इसलिए हम फिर अगर कोई रोक टोक करे तो फिर हम सबसे ज़्यादा माइंड इसी मामले में करते हैं कि हमारी कोई अगर नमाज की इस्लाह करना चाहे तो फिर हम बहुत नाराज़ होते हैं। हमारी मस्जिद में भी लोग जब नमाज का कहा जाए कि आपने सजदा सही नहीं किया, रुकू सही नहीं किया, तो फिर काफ़ी नाराज़गी हो जाती है। बुज़ुर्ग हज़रात है, फिर वो शर्म भी महसूस करते हैं। तो आम तौर पर अगर आप लोगों को किसी काम से रोकें तो इतना माइंड नहीं करते, लेकिन नमाज के बारे में आप थोड़ी सी भी बात करेंगे तो फिर वह हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत नाराज़ हो जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, क्यों मुझे कहा। मसलन नमाज में कोई रुकू सजदा नहीं करा, बस हजरात जो है वो सजदा करते हुए दोनों टांगे पीछे से उठा लेते हैं,
या रुकू अजीब तरीके से करते हैं, सजदा अजीब तरीके से होता है, या सलवार टखनों के ऊपर पड़ी हुई है, या नमाज का तरीका दुरुस्त नहीं है, रुकू सही नहीं कर रहे, रुकू में गए और फ़ौरन उठे और सजदा एक किया, फिर दूसरे सजदे में बैठे ही नहीं और फिर फ़ौरन उधर ही से सजदा कर दिया। हालांकि सजदा का तो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ की अदायगी नहीं होगी तो बहरहाल इसमें समझाने में किसी ने थोड़ी बहुत भी मुदाखलत कर दी ना, तो फिर हम लोगों के लिए वो चीज़, वो इस्लाह नाकाबिल बर्दाश्त होती है। तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले, तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले, हमारी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई और तुम आए हो हमें नमाज के तरीके बताने, नमाज समझाने। इसलिए उमूमन लोग अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए दूसरों को छोड़ देते हैं, ठीक है छोड़ो, जैसे मर्जी पड़े, जब किसी को खुद अपनी परवाह नहीं है, जब खुद वो अपनी इस्लाह नहीं चाहता, तो आप खुद क्या कर सकते हैं उसके लिए। और बाज़ औक़ात इनडायरेक्टली कई मरतबा समझाने के बावजूद भी लोग अपना तर्ज़ अमल नहीं बदलते। तो याद रखिए, जब तक तरीका दुरुस्त नहीं होगा, खुशू नहीं आएगा। कितनी दफ़ा हमने समझाया कि भाई इमाम से पहले सजदा न किया करो, न किया करो, फिर भी करते हैं नमाज। तो खुशू अपनी नमाज के अंदर पैदा करने के लिए पहली चीज़ क्या है कि अपनी नमाज को सुन्नत के मुताबिक कर लिया जाए, इसकी कोशिश करें। और इसमें सजदे की जगह पर देखने की कोशिश करें, नमाज में हरकत कम से कम करें। अगर आप किसी को खुशू के साथ और सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ते हुए देखें, तो आपकी नमाज में भी उसको महसूस करने से या उसको देखने से खुद ब खुद खुशू आ जाएगा। क्योंकि असर होता है ना, एक आदमी अच्छे तरीके से नमाज पढ़ रहा है, सुकून से पढ़ रहा है, तो आपकी नमाज में भी खुशू आएगा। इसलिए एक तरीका ये भी अपनाएं कि जो सही तरीके से नमाज पढ़ रहे हैं, पुरसुकून हो के नमाज पढ़ रहे, उनके पास खड़े होकर नमाज पढ़ें, तो आपकी नमाज के अंदर खुशू आएगा। इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। लेकिन ये तब फ़ायदेमंद है जब आप चाहते हैं कि मेरी नमाज के अंदर खुशू आ जाए और अल्लाह ताला ने जिस चीज़ का मुझसे मुतालबा किया वो मुझसे हो जाए, तो फिर फ़ायदा होगा, वरना फ़ायदा नहीं होगा। तो नमाज में सजदे की जगह पर देखना और कम से कम हरकत हो, ये दो काम आपने करने हैं। एक सजदे की जगह पर देखना है और एक हरकत को कम से कम करना है। तो ये दो काम करने की वजह से आपके अंदर ठहराव आ जाएगा, आपकी नमाज के अंदर खुशू पैदा हो जाएगा। इसलिए खुशू का सबसे पहले माना जो बताया गया आपको, वो सुकून है, इत्मीनान है। और जो आदमी इस तरह नमाज पढ़े, सुकून के साथ नमाज पढ़े, तो उसको नमाज के बाद भी एक सुकून और इत्मीनान महसूस होता है। हम जब नमाज पढ़ते हैं, मुकम्मल होती है, जब उठते हैं तो बेचैन उठते हैं। तो इसकी भी बुनियादी वजह यही है, जब बेचैनी हो नमाज के बाद, तो समझो कि आपने इत्मीनान के साथ और सुन्नत के मुताबिक नमाज का एहतमाम नहीं किया। परेशान भी हो जाते हैं बस औक़ात जो सही लोग, जिनको एहसास होता है। तो बहरहाल परेशान होने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है।
सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने से फ़ायदा होगा। तो दो चीज़ों पर अगर आप कर लें, बार बार उन पर, एक नमाज में सजदे की जगह देखना और दूसरा हरकत कम से कम, तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज को सुकून हो जाएगी, खुशू पैदा हो जाएगा। इस आयत करीमा में आप देखें ना कि अल्लाह ताला अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, सिर्फ नमाज पढ़ने का नहीं कह रहे, बल्कि साथ अल्लाह ये भी फरमा रहे हैं कि नमाज के अंदर खुशू भी हो, नमाज के अंदर आजिज़ी भी हो। और खुशू भी नमाज के अंदर होगा तो फिर मिलेगी कामयाबी। इसीलिए आप देखें कि नमाज वहाँ पढ़ने का कहा गया है जहाँ इर्द गिर्द ज़्यादा मूवमेंट ना हो। अब मर्दों के लिए तो बहुत अच्छा मौका होता है, मस्जिद में जाते हैं, कोई इर्द गिर्द कोई शोर शराबा नहीं है, वहाँ पर सुकून के साथ मस्जिद में जाके नमाज ही पढ़ते हैं। तो मर्दों के लिए खुशू का कुदरती एक माहौल पैदा हो जाता है मस्जिद में जाकर। और औरत के लिए क्या हुक्म है कि अंदर वाले कमरे में नमाज पढ़ो, यानी जहाँ एक्टिविटी ज़्यादा ना हो, आना जाना ज़्यादा ना हो, वहाँ पर पुरसुकून हो के नमाज पढ़ो, तब नमाज का फ़ायदा होगा और खुश। जब हम सुकून के फार्मूले पर अमल करेंगे तो फिर नमाज में हम कुछ और चीज़ों पर भी अमल करेंगे, कुछ और चीज़ों का भी ख्याल रखेंगे, जिनका उमूमन देखा गया है कि अक्सर लोग नमाज के अंदर ख्याल नहीं रखते। तो किन चीज़ों से बचना है फिर? नंबर 1, हिलना नहीं है। नंबर 2, मुख्तलिफ समतों में झुकना नहीं है, यानी कभी बाएं टांग पे खड़े हो गए, कभी दाएं टांग पे खड़े हो गए, कभी इधर कभी उधर, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अगर आपको शुरू में लंबी नमाज पढ़ने की आदत नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप मुख्तसर पढ़ें, लेकिन हिलना नहीं है। नमाज में हिलने से बचना है। कपड़ों को बार बार समेटे नहीं, नमाज के अंदर कपड़ों को फोल्ड न करें, उनके साथ खेले नहीं। कोई रुमाल, चादर है, टोपी है, या ख़वातीन है दुपट्टा है, उसके साथ खेले नहीं। फिर इसी तरह जानमाज जो है, जहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं उसको दुरुस्त तरीके पर बिछाया जाए। ये नहीं है कि फिर नमाज हो रही है या नमाज पढ़ रहे हैं और उसके दौरान आप जानमाज को ठीक कर रहे हैं, तो फिर इससे खुशू हासिल नहीं। और ऐसी जानमाज पर खड़े होकर नमाज न पढ़ें जिस पर आप सजदे में जा रहे हैं तो वो सिमट जाती है, उसको ठीक करना पड़ता है, फिर आगे होते हैं, रुकू में जाते हैं, आगे पीछे जाते हैं, उसको सही करना पड़ता है। तो फिर ऐसी जानमाज पर नमाज पढ़ते हो आपको खुशू हासिल नहीं होगा। अब देखिए कि जो पहले वक्तों में हमें भी याद है, जो खजूर की छाल होती है उसके बने मुसल्ले आते थे, सफ़ें आती थी, तो अगर उन पर नमाज पढ़ी जाए तो फिर आप देखें कि कुदरती खुशबू इंसान को महसूस हो। वो एक नेचुरल मेट होता है ना, उसकी अपनी खुशबू होती है, तो नमाज पढ़ने में बहुत ही सुकून और इत्मीनान उसमें इंसान को मिलता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा उसका ये होता है कि वो जो है वो फोल्ड नहीं होता, इकट्ठा नहीं हो जाता, तो इंसान के हाथ, इंसान के पाँव, इंसान का माथा उसके ऊपर सही तरीके से जम जाता है, तो इसमें खुशू फिर ज़्यादा पैदा होने के इम्कान होते हैं। आजकल जितनी ये मखमली किस्म की जानमाज़ें आ गई हैं, तो उतना ही फिर नमाज़ों के अंदर खुशू भी ख़त्म होता जा रहा है। कभी पाँव फिसल रहे होते हैं, कभी हाथ फिसल रहे होते हैं। जिस चीज़ पर आप नमाज पढ़ते हैं उस चीज़ को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है, तब आपकी नमाज के अंदर खुशू होगा और आपको कामयाबी मिलेगी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजी के सामने नक्श निगार वाली चीज़ें या जानमाज के ऊपर नक्श निगार वाली जितनी चीज़ें हैं उनसे मना किया गया है, ताकि इंसान की तवज्जो फुल मुकम्मल जो है वो अल्लाह की तरफ हो, ना कि इंसान नक्श निगार में खोया रहे। फिर इसी तरह जहन में रखें कि नमाज में बिल्कुल तन हो के भी नहीं खड़ा होना चाहिए, बल्कि रिलैक्स हो के नॉर्मल तरीके से जैसे इंसान खड़ा होता है ऐसे खड़ा हो, तो फिर भी इंसान की नमाज में खुशू आ जाता है। इसी तरह अगर आप अकेले में नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं या नफिल पढ़ रहे हैं, तो बहुत ऊंची आवाज़ में तिलावत न करें। आसान आराम से एक नॉर्मल
कैफियत में आप तिलावत करें तो इससे भी नमाज के अंदर इंशाअल्लाह खुशू पैदा होगा। और किरात जब करें तो उसके अंदर आजी हो, अकड़पन न हो, रिलैक्स हो के करें तो इससे भी नमाज के अंदर खुशू। इसी तरह गा गा कर तिलावत करना ये भी दुरुस्त नहीं है। मसनूई तकल्लुफ़ से तिलावत करना, फिर इसी तरह नमाज में जमाइयाँ लेना और लेते ही चले जाना, नहीं ऐसा नहीं करना। नमाज में खुशू इससे नहीं होगा फिर, बल्कि जमाई को कंट्रोल करें। इसी तरह जल्दी जल्दी करना ये भी फिर मुश्किल होगा, क्योंकि खुशू क्या है, सुकून है ना कि हरकत। और सुकून क्या है कि जब आप क़याम करें तो फिर हिलना जुलना बंद कर दें, और रुकू जब करें तो इतनी देर रुकू करें कि आपके जिस्म की हरकत ख़त्म हो जाए। और रुकू के बाद जब आप खड़े हों तो इतनी देर खड़े हों कि जितना आपका जिस्म हरकत करना और हिलना बंद कर दे, तो फिर आप देखें नमाज के अंदर कैसे खुशू आता है। और जब आप सजदे में जाएं तो तस्बीहात आराम सुकून से पढ़ें, और इतनी तस्बीहात पढ़ें कि आपकी हरकत ख़त्म हो जाए। और फिर जब उठें बैठें तो थोड़ा इत्मीनान कर लें, बैठ जाएं, और उसके बाद फिर सजदा करें। और सजदा इतना करें कि आपकी हरकत बंद हो जाए, सुकून आ जाए। 3 मरतबा, 5 मरतबा, 9 मरतबा, जितनी मरतबा आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे नमाज के अंदर आपकी खुशू पैदा होगा। ऐसा ना हो कि रुकू किया तो सजदे में, सजदे से उठे तो फिर सजदे में, कभी आगे कभी पीछे, ऐसी हरकत से फिर नमाज के अंदर खुशू नहीं आए। ये जो मारी मारी नमाज है जल्दी की, इसमें कतन खुशू पैदा होने का चांस। खुशू के लिए आपको आहिस्ता आहिस्ता और ठहर ठहर कर नमाज पढ़ना होगी, तब खुशू पैदा होगा। इसी तरह अगर नमाज के अंदर कोई चीज़ अजियत दे रही है, तकलीफ़ दे रही है, तो उसको हटाना भी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात जब हम कहते हैं ना कि सुकून नमाज में और ठहर जाना, लेकिन सुकून का ये मतलब भी नहीं है कि अब ख़ारिश थोड़ी बहुत हो रही है या बहुत तकलीफ़ हो रही है तो अब इंसान उसी की तरफ वो मसनूई सुकून भी तारी नहीं करना कि बस खड़े हैं जी, कोई नाक में कोई आगे पीछे होता है, हाथ नहीं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें फिर आपको जब ख़ारिश आ रही है या कुछ तकलीफ़ हो रही है या कुछ चीज़ है तो हटा दें या कर लें मुख्तसर से काम टाइम के लिए, तो इसमें तो ये होगा कि आपकी नमाज के अंदर सुकून बहाल हो जाएगा। लेकिन जो ही जब आपको नमाज क्या नाम है पढ़ रहे हैं और ये कुछ खुजली हो रही या तकलीफ़ हो रही और आपने मसनूई खुशू अपने ऊपर तारी किया हुआ है, तो फिर तो नमाज के अंदर आप परेशान हो जाएंगे कि भाई अब क्या करें। तो इसलिए बिल्कुल मसनूई खुशू भी तारी न करें, बल्कि कम से कम कोशिश ये हो कि कम से कम हरकत हो। अब मसलन के अंदर ख़ारिश हो रही है तो थोड़ा दबा के कर लिया तो ठीक है, ये नहीं है कि आप शुरू हो गए नमाज में और ये हरकतें करना शुरू हो गए, फिर इससे खुशू का माना ख़त्म हो जाएगा जी। फिर एक और मरहला आता है नमाज के अंदर के ख़यालात और सोचों का। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि अब इन ख़यालात का और इन सोचों का और इन वसवसों का क्या किया जाए। तो आप अगर सबसे पहले जो सुन्नत के मुताबिक तरीका है सजदे वाली जगह पर देखना शुरू कर दें, तो आप देखिए कि आपके ख़यालात कम हो जाएंगे। बहरहाल हर शख्स का अपना एक तरीका हो सकता है, लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे इसका बहुत फ़ायदा है कि जब इंसान अपना सजदे वाली जगह पर देखता है तो ख़यालात भी कम आते हैं। ज़ाहिर बात है सुन्नत के हर मामले में, सुन्नत तरीके में हर एक में फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया खुशू के लिए बेहतरीन है, तो आपकी फरमाया हुआ आपका फरमान जो है कोई भी जो है वो हिकमत से खाली नहीं होता। अगर हम समझ आए या ना उस पर अमल करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह नताइज आप देखेंगे फौरी हासिल हो जाए। तो आप यहाँ पर ये भी समझ लें कि ख़यालात दो किस्म के होते हैं, एक ख़यालात का आना और एक ख़यालात का लाना। अब आने वालों को तो आप रोक नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, और एक होता है ख़ुद उनको इनवाइट करना, बुलाना, दावत देना, इसको आप बहरहाल कंट्रोल कर सकते हैं। और जो बिन बुलाए आ जाते हैं ख़यालात, उनको आप इग्नोर कर दें, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसी चीज़ है ना जो मुसलसल काम करता है, रुकता नहीं किसी चीज़ पर। आप सो रहे हों तो तब भी वो ख्वाबें देखता रहता है, आप जाग रहे हों तो और किस्म की बात। तो ये ज़रूरी नहीं कि मुकम्मल ख्याल आपका एक तरफ हो जाए, क्योंकि बस औक़ात ऐसे होता है कि आप बात एक से कर रहे होते हैं, ख्याल दूसरे की तरफ होता है, तो ये होता है। लेकिन ये है कि इंसान कोशिश करके अपने ख़यालात को कंट्रोल करे। अब जो ख़यालात आ रहे हैं वो आने दें उनको। अब ये मिसाल के तौर पर आप कान पे तो हाथ रख सकते हैं, आंखों पे हाथ रख सकते हैं, मुंह पे हाथ रख सकते हैं,
लेकिन दिमाग को तो आप बंद नहीं कर सकते ना। तो दिमाग के ऊपर ना कोई ढकना दिया जा सकता है और ना कोई उसका कोई बटन है, स्विच है, वो ऑफ नहीं कर सकते। ये चलता रहता है बस। वो तो खुदा ना खास्ता दिमाग का स्विच ऑफ हो गया तो फिर तो गए, दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। दिमाग का स्विच तो ऑफ हुआ तो फिर तो ऑन नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये बड़ी मुश्किल है नमाज के अंदर वसाविस की, ख्यालात की। बस जो आ रहे हैं ना तो उनके ज़्यादा पीछे ना पड़े, उनको ज़्यादा सोचे नहीं, बस उनको रिजेक्ट कर दें, हटा दें, दिमाग को इधर उधर कर दें। उनको ज़्यादा अहमियत न दें, उनको अपने ऊपर हावी ना हो, उनका तस्करा बहुत ज़्यादा न करें। क्योंकि बाद लोग ऐसे होते हैं जो सबको किसी को लेके बैठ गए, क्या करूँ, मुझे नमाज में ख्यालात आते हैं, इसका कोई हल बताओ। हर एक से जब वो डिस्कस करते हैं तो और पक्के हो जाते हैं। इसलिए बस उनका तस्करी न करो जो ख्यालात आ रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है जिसके पास जादू की छड़ी हो कि वो आपको एक लगाए और आपके सारे ख्यालात ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं होगा। तो हर एक से बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है और ज़्यादा पक्की हो जाती है बात। बस इनका तस्करा ज़्यादा ना करें, बस जो आ रहे ठीक है टीजी बस ले लें, उनको ज़्यादा अहमियत न दें, तो इंशाल्लाह ये फिर परेशान नहीं करें। फिर आप देखें कि आप अगर नमाज के अंदर सूरतें बदल बदल के पढ़ेंगे, आप कुरान का कुछ हिस्सा साथ साथ याद करते जाएंगे, तो इससे भी एक आपके अंदर कुदरती तौर पर इंशाल्लाह खुशू पैदा होगा। तो आप देखेंगे जब आप अलग अलग करके सूरतें पढ़ेंगे तो इससे भी खुशू आएगा, क्योंकि चेंज से खूबसूरती आती है, फ़र्क पड़ता है, असर होता है। आप देख लें कि आप एक ही जगह काम कर रहे हो तो आपको एक ख्यालात आ रहे हैं, तंग कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ते हैं तो ख्यालात आते हैं, तो जो ही आप जगह चेंज करते हैं तो कुछ तब्दीली आ जाती है, कुछ आपका दिमाग इधर उधर हो जाता है। तो जितना आप सूरतें चेंज करके पढ़ेंगे, याद करेंगे, गौर फिक्र करते हुए आगे चलेंगे, तो इंशाअल्लाह इससे भी बहुत बेहतरीन तरीके से खुशू पैदा हो जाएगा नमाज। अब याद करने का फिर तरीका क्या हो, बसा औकात याद नहीं रहती, तो आप नफिल नमाज पढ़ रहे हैं तो एक छोटा सा कुरान अपने पास रख लें, कोई बैग सा बना दें कोई चीज़, तो उसमें रख लें। तो पहला जो पढ़ना है उसको देख लें और उसके बाद फिर उसको नमाज के अंदर पढ़ें। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस तरीके के करने से भी नमाज के अंदर खुशू पैदा होगा। तो कुछ अमली तदाबीर भी इंसान की नमाज के अंदर खुशू पैदा कर देती हैं। कुरान आप नफिल पढ़ रहे हैं तो कुछ दुआएं वगैरह पढ़ लें, कुछ नवफिल के दरमियान रिलैक्स कर लें, आगे पीछे हो जाएं, पानी पी लिया, तो फिर इससे इन अमली कुछ भी तदबीरें हैं इनके करने से इंशाअल्लाह आपकी नमाज के अंदर खुशू आ जाए। इसी तरह जहाँ पर आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ पर पाकीज़गी का माहौल पैदा हो जाए, तो इससे भी नमाज के अंदर खुशू आता है। मसलन जहाँ नमाज है सही प्रॉपर तरीके से, अगर आपको खुशबू से कोई असर नहीं हो रहा, खुशबू थोड़ी बहुत लगा लें, और अगर गर्मी है, घुटन है, तो उससे हट के किसी पंखे के नीचे नमाज पढ़ लें, खिड़की है तो खिड़की खोल लें। तो जितनी भी सफाई की इंतज़ाम है, अगर जहाँ नमाज है उसको धो लिया जाए, कोई और जगह है जहाँ जिस चीज़ है नमाज पढ़ रहे हैं, तो जितना आप अपना जो माहौल है उसको साफ़ सुथरा करने की कोशिश करेंगे, तो इससे भी नमाज के अंदर खुशू पैदा होगा। तो जिस तरह लिबास की सफाई और जिस्म की सफाई, इससे इंसान की तबीयत में खुशगवारी भी आती है, नमाज में खुशू भी आता है। इसी तरह जगह की सफाई भी ये भी काउंट करती है कि नमाज के अंदर इंसान के अंदर खुशू पैदा हो सकता है, और होता भी है इससे। क्योंकि अगर ऐसी जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हैं जहाँ वो जो गंदी है, बू आ रही है या घुटन है, तो फिर आप जमाइयाँ शुरू हो जाएंगी, नींद आने लग जाएगी, और आप सेकंडों के अंदर कोशिश करेंगे कि नमाज से फारिग हो जाएं, और इतना कीमती तरीन सरमाया और इतनी कीमती तरीन मता को आप ज़ाया कर देंगे। तो आप ज़िंदगी के एक उसूल बना लें कि जब भी कोई मामला पेश आ जाए, कोई मसला पेश आ जाए, तो परेशान होने के बजाय उस मसले का हल तलाश किया जाए कि भाई इसका हल क्या है। बैठ कर इंसान फिर परेशानी होता है। तो मसलन नमाजी के अंदर खुशू नहीं आ रहा, तो अब इंसान चेक करे कि भाई मेरे लिबास के अंदर सफाई नहीं है, जिस्म के अंदर सफाई नहीं है, माहौल में सफाई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब आप उसको हल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपकी नमाज में सुकून आ जाएगा। तो मसला जो भी पेश आ जाए उसका हल निकालने की कोशिश करें, और फिर जितने असबाब हैं, कोई अपने से नहीं हो रहा तो किसी और से मशवरा कि भाई मुझे नमाज के अंदर सुकून नहीं हो रहा, मेरी नमाज ठीक नहीं है, मुझे तहियात सही नहीं याद, दुआए कनूज याद नहीं है, सूरह फातिहा नहीं याद, या कोई सूरतें नहीं याद हैं। ये सारे मसाइल इनको आप हल करते जाएंगे तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। और सबसे बेहतरीन हल जो है अल्लाह के सामने जारी करना। हर मसला
انسان کا اللہ کے سامنے پیش ہو، انسان اللہ کے سامنے سر رکھ دے تو انسان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ انسان اللہ کے سامنے زاری کرنا شروع کر دے تو سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ نماز میں خشوع نہیں ہو رہا کیونکہ بہت اہم بات ہے، اتنا لمبی تفصیل میں نے اس پر کر دی اللہ کے فضل سے، تو کیونکہ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی نماز کے اندر خشوع ہو۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو پھر نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز کے اندر خشوع بھی پیدا کرنا پڑے گا، ورنہ پھر کامیابی سے تو بہت دور ہو جائیں گے اگر خشوع نہیں ہے۔ تو اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، نماز کے اندر یا اللہ خشوع دے، یا اللہ نماز کے اندر میرا دل لگا دے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ جب تک میں نماز نہ پڑھوں میرے دل کو بے چینی ہو، سکون نہ ہو۔ جب آپ یہ اللہ کے سامنے کریں گے تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں سارے مسئلے کا حل موجود ہے اللہ کی ذات کے پاس۔ تو اللہ سے جس کا تعلق ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، تو پھر وہ آدمی پریشان نہیں ہوتا۔ دنیا کی چیزوں کے لیے ہم کتنا رو رو کے مانگتے ہیں، ہمارے غم بھی دنیا کے ہیں، پریشانیاں بھی دنیا کی ہیں، آخرت کے لیے بھی ہم تڑپ تڑپ کے مانگے، پھر دیکھیں کیسے مسئلے نہیں حل ہوتے۔ اور جہاں پر پھنس جائے نا تو پھر صدقہ کریں، رکاوٹ پیش آ گئی تو صدقہ کریں، کیونکہ صدقہ ایسی طاقتور چیز ہے جو ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ اس سے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو رکاوٹیں ہیں اس کی گرہیں کھلتی جائیں گی۔ اور صدقے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی بڑا اہتمام ہو اور دیگے لائے اور اس کے بعد ہی صدقہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو میسر ہے، جو آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ فوری طور پر، اگر آپ مالی طور پر نہیں، جو بھی ہے آپ کے سامنے ہے اس کے لیے کوئی دن، کوئی بندہ، کوئی خاص، بس جو بھی آپ کے سامنے اس کے ساتھ بھلائی کر دیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو مسکرا لیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ صدقہ جو ہے، چھوٹے چھوٹے صدقے جو ہیں آپ کی رکاوٹوں کو دور کر دیتے ہیں، اس لیے صدقہ دینے کا اہتمام کریں۔ آگے بڑھ کے کسی کو سلام کر لیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو بھی مدد ہے کسی کی، وہ ساری صدقے کے اندر ہی شمار ہوتی ہے۔ تو نماز جو ہے یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اصل حقیقی کامیابی تو انسان کو آخرت میں ملے گی، لیکن نماز کے ذریعے دنیا کی کامیابی بھی انسان کو ملتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ، تو جب آپ ہر معاملے میں نماز کی طرف رجوع کریں گے تو پھر آپ کو نماز آپ کے اوپر بوجھ نہیں رہے گا۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ترین عمل کیا ہے؟ یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اپنے وقت کے اندر ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ جو نماز کا وقت پر پڑھنا ہے نا، اگر آپ وقت پر نماز پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اور ہر کام میں برکت آ جائے۔ کوئی بھی نماز جو وقت کو ٹال کے پڑھیں گے، تاخیر سے پڑھیں گے، وہ خشوع سے خالی ہوگی، کیونکہ انسان بیٹھا ہے، ٹال رہا ہے، اب آخر میں 10 منٹ باقی نماز، اب اس میں خشوع کیسے ہوگا؟ وہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ تو وقت پر نماز پڑھنا یہ بھی نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو کوشش ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز کے اندر خشوع آ جائے تو پہلا کام سب سے پہلا کیا کرنا ہے کہ نماز کو باجماعت پڑھنا ہے، مردوں کے لیے اور خواتین کو اول وقت میں گھر کے اندر پہلے ٹائم میں پڑھنا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نماز کے اندر خشوع کیسے پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اڑ جائے گی، سلب ہو جائے گی، وہ خشوع ہے۔ خشوع اڑ جائے گا، یہاں تک کہ قوم کے اندر، پوری مسجد کے اندر ایک آدمی بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اور آج ہم اپنے حالات کو دیکھ لیں کہ ایک بندہ بھی شاید کہ کوئی ہو جو
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और दाढ़ी के साथ खेल रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसके दिल में सुकून होता, खुशू होता, तो इसके जवारिह पर भी खुशू और सुकून होता, लेकिन चूँकि इसके दिल में सुकून नहीं है तो वो अभी दाढ़ी के साथ खेलेगा या कभी कपड़ों के साथ खेलेगा या कभी किसी चीज़। खुशू का लफ्ज़ बोलते ही आपके जहन में क्या चीज़ आती है? सबसे बड़ी बात आपके जहन में आनी चाहिए सुकून और आजिज़ी। बस दो लफ्ज़ हैं, एक लफ्ज़ में हो तो सुकून, दो में हो तो साथ उसके आजिज़ी भी, जारी भी। ये जो है ये खुशू को वाज़ेह करने वाली चीज़ है। सूरतुल अंबिया में अल्लाह ताला ने अंबिया की सिफ़ात में से ये फरमाया वकानू लना खाशिईन। ये सारे के सारे पैगंबर हमारे सामने खुशू करने वाले थे, आजी करने वाले। इससे ये पता चलता है कि खाशे होना जो है, आजिज़ होना जो है, ये अल्लाह ताला के सामने, ये अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा है। और ये खाशे और आजी और वाला होना ये अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के लिए पसंद फरमाया है और उनके अंदर ये सिफ़ात मौजूद थी। तो ये जो खुशू है ये सिर्फ नमाज की हद तक नहीं है, बल्कि आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी हमारे अंदर सुकून, खुशू और आजिज़ी होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के लिए जो चीज़ पसंद की है उसको हमें इख्तियार करना चाहिए। और याद रखें, जब एक नमाज आप खुशू के साथ, आजिज़ी के साथ पढ़ेंगे तो दोबारा अब दूसरी नमाज के लिए आपको इंतज़ार होगा कि कब टाइम आए। लेकिन जब आपने एक नमाज ख़राब कर दी तो फिर दूसरी पढ़ने को दिल ही नहीं करेगा। चूँकि हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हमारा दिल नहीं करता, तो आप समझ लें कि हमने पहले नमाज ख़राब की हुई है। लेकिन आप देखें कि जो नमाज आप अच्छी पढ़ते हैं, सुकून के साथ पढ़ते हैं, तो फिर आप देखें कि उस नमाज के अंदर कितना सुकून भी होता है और अगली नमाज में आपको इंतज़ार होता है कि कब टाइम आए और मस्जिद में जाऊँ और नमाज़ पढ़ूँ। क्योंकि नमाज अगर सही तरीके से पढ़ ली जाए ना, तो नमाज हमारी पूरी शख्सियत की इस्लाह कर सकती है, हमारी पूरी ज़हनियत को, हमारी पूरी सोच को बदल सकती है। अगर हम मुसलमान नमाज पर आ जाए, नमाज़ें हमारी सही हो जाएं, तो आप देखेंगे कि हमारी शख्सियतें कितनी पावरफुल होती हैं, कितनी बाकिरदार होती हैं। चूँकि नमाज की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है तो हम हर मामले में हमारे कमज़ोरी है, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, खुशू नहीं है, आजिज़ी नहीं है। क्योंकि नमाज के अंदर की जो कैफियत हैं वो बाहर ज़ाहिर होती हैं, ठहराव पैदा होता है, सुकून आता है। और याद रखें, जब इंसान नमाज में सुकून नहीं है तो फिर ज़िंदगी में सुकून नहीं है, और जब इंसान की ज़िंदगी में सुकून नहीं होता तो फिर इंसान लग़वियात की तरफ, बुराइयों की तरफ माइल होता है। फिर इंसान की बर्बादी की बुनियाद जो है वो शुरू हो जाती है। जब सुकून आ गया तो फिर सुकून का असर जो है फिर आपके बाहमी ताल्लुकात पर भी इसका असर होना चाहिए, गली मोहल्ले के अंदर भी असर होना चाहिए। इत्मीनान, पुरसुकून, वक़ार के साथ रहिए, अपने दिमाग को ठंडा रखिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप भाइयों को काफ़ी टाइम ले लिया, आप मुकम्मल इस बयान को